Hello and welcome everyone to this live session on current affairs in which we are going to cover Industrial Code 1. Okay, in the other class on Friday, we had talked about the brief overview, and I told you some minor facts like labor is in the concurrent list. Labor as a subject is in the concurrent list, right? Is it streaming fine? Is it streaming properly now? Please check. It should be working fine at everybody's end now. Check once, everyone. ओके सो दैट्स फाइन नाउ. तुम लोग कुछ लोग जो है मज़े मारने में रहते हो, 2 दिन छुट्टी मना के तो आए हो. एंड एज per the concern raised by some of you for geography, let me clear it out. There will be a few classes taken by one of the UPPCS toppers, one of my students, Divyanshi. Okay, so she will be taking the economic geography classes. Divyanshi has cleared UPPCS exam with a very good rank, and she is waiting for the UPSC interview. She got the interview call for UPSC. She seems like a minor kid like you only, but very meritorious. So she will be taking 5-7 classes on your economic geography and other doubts classes for geography. Okay, Saran sir will also be joining in. He is busy with some other platform for some of the days. He'll also be joining back, and your इकोनॉमिक जोग्राफी पार्ट, फैक्चुअल पार्ट, मैंने सोचा कि प्रीलिम्स का थोड़ा अच्छे से कवर करवा दिया जाएगा टू योर एडवांटेज. नाउ लेट्स बिगिन विद द लेबर कोड थिंग. जो आईजीएस वाले स्टूडेंट्स थे ये उनके लिए इंपॉर्टेंट था, एंड कुछ कुछ जो बाकी बैचेस हैं आईजीएस वाले हैं उनमें भी ये क्लास लाइव स्ट्रीम होगी. प्रीलिम स्पेशल बैच वालों के लिए भी ये क्लास इक्वली रहेगी. सो वी हैव टोटल 4 टीचर्स फॉर ज्योग्राफी नाउ, including Prashant sir, who is the senior one, who is taught at platforms like Forum IAS, Vision IAS, or this girl is also quite unique in her way of teaching. I saw her demo lessons also. It feels really good when you have your own student clearing this exam and then teaching on your own platform. Now coming here, Industrial Relations Code, Occupational Safety, Health and Working Conditions Code and the Social Security Code. ये 4 कोड हैं हमारे जो कि हम स्टडी करने जा रहे हैं one by one. Now take down the dictation is going to be there today. In Industrial Relations Code Bill 2020, the government has proposed to introduce more conditions that are likely to provide more flexibility to employers for hiring and firing workers. Without government permission, right? Without government permission. Is it fine now? Is the audio quality better? So without government permission, they are likely to provide more flexibility to employers for hiring and firing workers. Restricting the rights of workers to strike, an increase in the threshold relating to layoffs and retrenchment in industrial establishments having 300 workers from 100 workers or more. Now, can I make one small announcement? I was about to take a video on this also. Rishabh sir might also take. Okay, Rishabh sir may also take, but he is also been given some other tasks in some other batches on GS. We are running at least 5 batches of GS due to immense response by you guys. Now, just one thing, many of you keep on asking the questions here and there, sir prelims postpone होगा कि नहीं. ये जो काम चोरों की बस्ती है तुम लोगों में से 10-15-20 लोग ऐसे हैं, वो यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं. उनका एक ही क्वेश्चन होता है प्रीलिम्स जीएस का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का. एक ही डाउट होता है प्रीलिम्स पोस्टपोन होगा कि नहीं. उनके लिए मेरा एक आंसर ये है कि देखो, लाइकलीहुड इज़ वेरी हाई कि प्रीलिम्स पोस्टपोन होगा, लेकिन उसके बाद ये गारंटी नहीं है कि जो लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं सिर्फ कि उनका क्लियर होगा कि नहीं, उनके लिए गारंटी नहीं है. क्योंकि तुम्हें कितना भी टाइम दे लिया जाए, तुमने फिर भी यही क्वेश्चन पूछना है कि प्रीलिम्स अगले जन्म में होगा कि नहीं. Now, coming back here, reason one is the number of cases this year is very high, and it seems unlikely that the government would be able to control this pandemic, though that's another worrisome news here. Government may not be able to control this pandemic within the span of next 2 months. Right? And the concerns around third wave.
they are also very high. Scientific government's own scientific advisor, apart from various standard newspapers or journals like Lancet talking about this thing. So it seems highly unlikely that we would be able to tame this wave भले ही cases कम हो जाएं, and probably it depends upon one more factor, that is if the government is able to vaccinate too many people too fast so as to render them immune against the virus. Only then can we expect. And now, as per the internal thing that we get to know, some UPSC members have themselves been affected. Some students who are waiting for interview to happen, they are also affected. This girl Divyanshi, she was also affected with COVID-19. So they are recovering too, but many of them have even succumbed to it, right? So considering the scenario, and then the third part is, UPSC has to give a reasonable chance to those who are appearing for interview. It has never happened in the history of UPSC that interview candidates have not been given their results and prelims has happened. No, कभी नहीं हुआ ऐसा. First the interview results come and then the prelims happens. Okay, so given all these factors, because if let's say a candidate who has appeared in interview, he clears IAS, but his result comes after 27th June, so he again appears into prelims, thereby denying and his chances of clearing the prelims are very high. So he would clear the prelim, he would eat up the chances of somebody like you who is sincere enough to clear the prelims. He would be eating that person's seat. A person who is already into IAS would clear the prelims, that would increase the burden of UPSC, and then if after prelims the interview results come, that is least likely, I mean, that is going to be a waste of UPSC's resources, isn't it? And UPSC would be denying you a chance. तो इसलिए, राइट? तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लीस्ट लाइकली हो जाता है. उसके बाद इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी टू कंडक्ट प्रीलिम्स, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अट्रैक्टेड द आयर ऑफ Madras High Court that you are responsible for the pandemic, for the second wave of pandemic in Bengal and elsewhere. And then in UP Panchayati Raj elections, 700 workers have got, at least 700 workers, people, the government employees, the teachers who were on duty, they have succumbed to COVID-19. Given all these things, this is least likely to happen. Okay, prelims may not happen, but this is again comes with a string attached in the form of a disclaimer that whatever I'm saying may not apply, because UPSC has been considered to be very rigid body, and this time around they should take into account the concern of the students, and they should inform beforehand instead of wasting the students' time. And now, how should it matter to you if the prelims is going to postpone or otherwise? You should be consolidating more and more on the static and current affairs preparation that you are doing. And it is in this light we are going to come up with another plan. Though we have come up with the 50 days plan, we will be coming up with another plan for next 2-3 months. It seems likely that prelims may be conducted in October 2021. Okay. Mains may be conducted in October 2021. Prelims may happen in August or September. Alright. Now, official notification will be out and around somewhere around 27th of May as per some information from the corridors of power. So 27th of May के around ये कुछ notification आ सकता है. UPSC is actually waiting for second and third consignment of drugs from India is waiting for those drugs, and UPSC is also keeping an eye on these happenings. अगर vaccination drive successful होती है 27th May के आसपास, तो शायद UPSC may bounce back, and I mean we all would have to bounce back and be ready for the prelims. Done? How should we go about it? Now, I'm asking, answering certain important questions. Sorry if some of you think that I'm wasting your time. See, your approach should tilt now. Earlier, you were focused 100% on prelims. Okay, till today, you were focused. Let us suppose if you were preparing all time for prelims, now you should start focusing at least 30 to 40% on mains preparation. Okay, optional especially.
because the casualty in this entire process is going to be the time window between the prelims and mains, though the time window is already very less. In order for UPSC to reduce it, because there has to be a minimum of 3 months gap, okay, between the prelims and mains, as per the bylaws, as per the rules of UPSC, rules governing UPSC. Internal rules are there that minimum 3 months gap is required to be there. But still, you can utilize this time to consolidate your preparation for mains. Now, I'm not saying that you should be purchasing or downloading some book which is saying mains oriented, mains special. No such book is there. While reading, nowadays you are focusing more upon prelims oriented facts. So, keeping an eye on the prelims oriented facts, you should also be asking your mind, you should keep on reiterating in your mind कि ये mains के लिए भी पढ़ना है. Would you be able to write this entire sentence for mains? That is the questioning that has to go on in your mind when you are reading something. That is how I would prepare for mains, right? So this is there. Now ये लॉजिक मतलब काफ़ी सोच समझ के, आई एम नॉट गेस्टिमेटिंग हियर, बट इट्स लॉजिकल कंक्लूजन. We also discuss it with a lot of people, seniors and juniors and our peers, colleagues and all. उसके basis पे मैं ये बता पा रहा हूँ. Just a minute. Now let's focus. Okay. अभी इसके लिए ये नहीं है कि चलो सर छुट्टी, क्लास ख़त्म, ये सब ठीक है नहीं. इसके बाद ये भी नहीं होना कि चलो सो जाते हैं. देखो, एक कुदरत, जब तुम्हारे कुछ लोगों के लिए कुदरत ये मौका एक भेज रही है, राइट? मान लो इसे, even though it's a blessing in disguise for some of you and for some others also, since the fact that nation is passing through a crisis, but कहीं ना कहीं मान लो कि शायद कोई कायनात ने तुम्हारे लिए एक और मौका भेजा है कि तुम अच्छे से पढ़ लो. जिन लोगों ने टाइम वेस्ट किया है, पाप धोने का मौका कभी कभी मिलता है, तो टाइम वेस्ट करना पाप करना है, तो वो पाप धोने का मौका तुम्हें मिल रहा है ना. उसको थोड़ा सा यूटिलाइज करते हुए यू कैन इंक्रीज योर चांसेस टू क्रैक प्रीलिम्स. We are also doing our part. We are also bringing in people who are in prelim stage. We had 400 students enrolled for our interview guidance program, and we are reaching out to them if they could take a few classes and all. And we have come up with a free test series also. 6 टेस्ट्स की ये टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें मैं आप ₹1 में सिर्फ एनरोल कर सकते हो. जिन लोगों की पुरानी टेस्ट सीरीज़ ठीक से चल रही है वो ठीक से चलने देना. नाउ कमिंग बैक हियर, ओके, रेज्ड द थ्रेशोल्ड, ये हमने पढ़ लिया था. द इंडस्ट्रियल लेबर कोड हैज़ रेज्ड द थ्रेशोल्ड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टैंडिंग ऑर्डर, रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर वर्कमैन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स टू ओवर 300 वर्कर्स. Explanation: this implies that industrial establishments with up to 300 workers will not be required to furnish a standing order. I had explained this thing to you. Standing order वाला point मैंने पहले भी explain किया था, right? तो ये सारी चीज़ें हैं. Now उसके बाद तो ये मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल लेबर कोड में अभी ये चीज़ें हैं कि उनको कंपनीज जिनमें 100 से ज़्यादा वर्कर्स हैं उनको क्लियरली अपने रूल्स बताने होते हैं, है ना, कि उनके रूल्स क्या हैं, किस तरह से वर्कर को सस्पेंड किया जाएगा, किस तरह से उसकी छुट्टी लगेगी. तो अब वो रूल 100 वाले कॉरपोरेशंस पे, 100 वाली फैक्ट्रीज़ पे, इंडस्ट्रीज़ पे नहीं लगेगा, बल्कि वो रूल अब 300 वाली कंपनीज़ पे लगेगा. इज़ इट क्लियर, सईद एंड अदर्स? It was earlier suggested by the Standing Committee on Labour, which also suggested that the threshold be increased accordingly in the code itself. And the words, पहले लिखा है कि Standing Committee ने एक चीज़ और सुझाव दिया कि threshold be increased accordingly in the code itself, instead of leaving an open language. अभी एक्ट में पता है क्या लैंग्वेज दी हुई है? एक्ट में ये लैंग्वेज दी हुई है, पुराने एक्ट में 1946 के एक्ट में, कि as may be notified by the appropriate government. Appropriate government here could be state government or central government. But okay, after becoming a law, committee says that after becoming a law, after being written in the act, अगर इसको एक्ट में ही लिख दिया जाएगा, तो मैंने आई हैड एक्सप्लेन्ड यू कि जब कोई चीज़ एक्ट में चली जाती है तो वो सैक्रोसैंक्ट हो जाती है, परमानेंट हो जाती है. उसको एग्जीक्यूटिव की, सरकार की विम्स एंड फैंसीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता. SACROSACNT, राइट?
तो अगर वो सैक्रोसैंक्ट हो जाएगा तो बार बार गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करके कम या ज़्यादा नहीं कर सकती. क्लियर. अब हो सकता है कि पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे कोड में ही लिख दिया कि 300 वाले वर्कर्स पे ये लागू होगा, तो ये 300 वर्कर्स वाले पे लागू होगा ही. लेकिन अगर हम इसे ये छोड़ देते हैं कि पार्लियामेंट ने ये लिख दिया कोड में कि 300 वर्कर्स और एज मे बी नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, अगर ये लैंग्वेज कर दें एज इट वुड बी नोटिफाइड, फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट इसे अपने आप चेंज करना चाहे बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के तो भी ये चेंज हो जाएगा. इस नंबर को कम करना है या बढ़ाना है, इसलिए इस नंबर को एक्ट में लिख के, कोड में लिख के फ्रीज करने की बात की जा रही है. क्लियर. क्लियर है ये पॉइंट. Now, I told you that it also increased the thing here 60 days. No new condition for carrying out a legal strike. The Industrial Relations Code also introduces a new condition for carrying out a legal strike. The time period for arbitration proceedings has been included in the conditions for workers before going on a legal strike against only the time for conciliation at present. For instance, the IR code proposes that no person employed in an industrial establishment shall go on strike without a 60-day notice period. ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने, बताओ तुम लोग कमेंट्स में. ओके. If it is implemented only factory, private office. If it is implemented only factory या private office, ये क्या पूछ रहे हो? So is this clear now? इसके अलावा इसमें और कोई ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है इंडस्ट्रियल लेबर कोड वाले में. ठीक है. एट प्रेजेंट अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक यूटिलिटी और सर्विस, कोई नहीं. सो it has also proposed to set up a reskilling fund for training of retrenched workers. ये लिख लो. Setting up of a reskilling fund, reskilling. The new Industrial Labor Code has also talked about a reskilling fund for training of retrenched workers. Training of retrenched. Retrenched, trench का मतलब क्या होता है? जो वर्कर्स को हटा दिया गया है, राइट? ओके. So am I audible now? Am I audible to everyone? Okay, so let's get started. So reskilling of retrenched workers के लिए with a contribution from employer. With a contribution, इसमें कौन contribute करेगा? retrenched workers की training के लिए जो contribution आएगा from employers, employers contribute करेंगे. Contribution has to be from employer's side. So shall I repeat the entire sentence? Write down. The new code also proposed to set up a reskilling fund for training of retrenched workers with a contribution from the employer of an amount equal to 15 days
of an amount equal to 15 days of 15 days apostrophe s 15 days last drawn salary. Clear? Amount equal to 15 days लास्ट ड्रॉन सैलरी बाय द वर्कर. तो 15 दिन का लिए. अब मैं थोड़ा सा एक डिफरेंस बताना चाहूंगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट? layoff and retrenchment. Is this clear? अब ले ऑफ क्या होता है? ले ऑफ होता है जब टेम्परेरीली काम ना हो और वर्कर्स को बोल दिया जाए कि अभी आप छुट्टी पे चले जाओ, विदाउट पे लीव काइंड ऑफ. ठीक है, तो विदाउट पे उनको लेटा दिया. ले ऑफ मतलब अभी लेट जाओ, अभी काम नहीं है. लेट जाते हैं ना वर्कर ऐसे सिर नीचे बाजू रख के. रिट्रेंचमेंट होता है जब उनके स्किल्स की वजह से, जैसे कंप्यूटर के आने की वजह से टाइपराइटर वाले जो टाइपिस्ट थे उनको रिट्रेंच कर दिया. अब ले ऑफ वालों की तो ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती. ले ऑफ का मतलब होता है कि काम नहीं है. रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि तुम्हारे जैसे स्किल्स रखने वाले व्यक्ति के लिए काम नहीं है, तुम्हारे जैसे स्किल्स रखने वाले वर्कर के लिए काम नहीं है. राइट? यस. ओके, क्लियर है? विच पॉइंट इज नॉट क्लियर, आर्शिका? It also proposes to set up a reskilling fund for training of retrenched workers from a contribution to be made by an employer, which is going to be equal to 15 days last drawn salary. 15 days salary of the last drawn salary. Yes, it would be a burden on the employer. Skilling of labor is the role of government, is the job of government. Now government is passing on an additional burden on the employer. Clear? Is this clear, everyone? All right. Now, all right. So this is there now. Clear है? अब तो क्लियर है ना सबको? अब तो कोई दिक्कत नहीं है. अब इसके अराउंड कंसर्न्स क्या हैं, फ्लॉज क्या हैं इसके? 4 पॉइंट्स लिखेंगे सिर्फ फटाफट से. कंसर्न्स अराउंड फर्स्ट कोड, इंडस्ट्रियल लेबर कोड. कंसर्न नंबर 1, फ्लेक्सिबिलिटी. Tremendous amount of flexibility to the employers in terms of hiring and firing, dismissal. It gives tremendous amount of flexibility to the employer. It gives tremendous amount of flexibility to the employer in terms of
hiring and firing, and dismissal for alleged misconduct, and dismissal for alleged misconduct, alleged misconduct. Clear? And retrenchment, and retrenchment, and layoff. ठीक है, वही सेम पॉइंट जो हम पहले पढ़ चुके हैं. नंबर 2, prolonging the legally permissible time frame, legally permissible for strike. ठीक है. नाउ रीसेंट, अब थोड़ा सा मैं इसको मोनोटनी को ब्रेक करते हुए कुछ फैक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ. इंडिया हैज़ रेटिफाइड हाउ मेनी कन्वेंशंस ऑफ ILO? ILO कन्वेंशंस रेटिफाइड बाय इंडिया. कंसर्न्स हो गए, 2-3 ही कंसर्न्स थे, 1-2 और हैं तो लिखवा देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है. अच्छा, एक और थर्ड पॉइंट पहले लिख लो. द न्यू कोड कंसर्न्स में ये पॉइंट है, कवर्स ऑल द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स. इट हैज़ एक्सपैंडेड द कवरेज ऑफ कोड, it has expanded the coverage of code to all the industrial establishments. It has expanded the coverage of the code to cover all the industrial establishments for the required notice period and other conditions for a legal strike. It has expanded the coverage of code to cover all the industrial establishments for the required notice period and other conditions for legal strike, even though the Standing Committee on Labour had recommended against it. Even though the Standing Committee of Labour had recommended against its application, even though the Standing Committee of Labour had recommended against its application beyond public utility services. Okay, public utility services. Clear? स्टैंडिंग कमेटी ने ये कहा था कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ट्रांसपोर्ट, इसके बियॉन्ड कोड को स्ट्रेच नहीं करना चाहिए. लेकिन कंसर्न ये है कि सभी इंडस्ट्रीज पे इसको लागू करना, कि नोटिस पीरियड देना होगा, ये सब करना होगा लीगल स्ट्राइक के लिए. नोटिस पीरियड एंड अदर कंडीशंस फॉर अ लीगल स्ट्राइक. नोटिस पीरियड 60 दिन का देना होगा. ये जो हम लिखा है ना लास्ट पॉइंट PPT पे, जो ऑलरेडी टाइप्ड है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पॉइंट. ठीक है, तो नोटिस पीरियड देना सभी फर्म्स के लिए जरूरी होगा. वर्कर्स को यदि स्ट्राइक पे जाना है तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के केस में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको नोटिस पीरियड देने के लिए कहो तो समझ में आता है. लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी जो चॉकलेट बना रही है, डेयरी मिल्क बना रही है, या किटकैट बना रहे हैं, तुम कहीं चले मत जाना, किटकैट बाद में खा लेना, पहले इधर सुन लो. ठीक है, तो कोई कंपनी अगर ये सब कर रही है तो उसको भी
उसको भी वर्कर्स को स्ट्राइक पे जाना है, अगर उस कंपनी के वर्कर्स को स्ट्राइक पे जाना है तो उन्हें नोटिस देना होगा, ठीक है। अब ये मारुति कंपनी है, वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस थोड़ी ना है, उसके वर्कर्स यदि स्ट्राइक पे जाएंगे तो उनको भी नोटिस देना पड़ेगा। द न्यू कोड हैज एक्सपैंडेड द कवरेज ऑफ the code to cover all the industrial establishments for the required notice period to proceed on a legal strike. To proceed on a legal strike. Clear? Even though the parliamentary standing committee had suggested against its application beyond public utility services. Clear? Okay, so this is there now. क्लियर? अब लिखो कि कौन कौन सी कन्वेंशन इंडिया ने साइन करी हैं। इंडिया हैज रेटिफाइड 6 आउट ऑफ 8 फंडामेंटल ILO कन्वेंशंस। फंडामेंटल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो कन्वेंशंस हैं, इंडिया ने उसमें से 6 आउट ऑफ 8 साइन कर रखी हैं। ओके, कौन कौन सी हैं? नंबर 1, फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, कन्वेंशन नंबर 29, फोर्स्ड लेबर, कन्वेंशन अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर। क्योंकि लेबर कोड की बात हो रही है, यूपीएससी ये एंगल भी पूछ सकती है, फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन। Clear? Then abolition of forced labor, abolition of forced labor, abolition of forced labor, convention 1957, कन्वेंशन नंबर कितना है? 105। ओके, देन थर्ड, इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन। ये इसको याद करना भी आसान है। नाइनटीन 51। ओके, कन्वेंशन नंबर है 100। अब देखो 100 का आधा कितना होता है? 50-50। ये ईयर था 1951, ठीक है। 1 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं मेन को। कुछ ऐसे याद रख सकते हो तिकड़म भिड़ा के, समझ रहे हो ना? देसी तरीके से ही चीज़ें याद रहेंगी। नाउ डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन। एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगी। डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। कन्वेंशन नंबर 111।
111, 1958 की ये कन्वेंशन है, ठीक है। देन मिनिमम एज कन्वेंशन, दिस इज द रीसेंट वन टू बी साइंड बाय इंडिया। मिनिमम एज बच्चों के लिए, जो चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था ना, उस टाइम पे ये लाई गई थी, मिनिमम एज कन्वेंशन, ओके। नाइनटीन 1973 की कन्वेंशन है एंड कन्वेंशन नंबर है 138। इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है वैसे 2016 में, बट फिर भी लिख लो। वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 की ये कन्वेंशन है और इसका नंबर है 182। क्लियर? अब जो दो नहीं साइन करी उसके बारे में भी बात करते हैं। क्लियर? लिखो इसको। ये सब्जेक्ट कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मोली, ठीक है। नाउ मोदी नहीं है, हर चीज़ की तरह मोदी नहीं है, MOOLE है, और LOL भी नहीं है, समझ रहे हो ना। नाउ वैसे तो मोदी जी के अलावा सब मिनिस्ट्रीज लोल हैं आजकल, मतलब समझ रहे हो ना। नाउ इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड द टू कन्वेंशंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, the two conventions not signed by India. Freedom of association and protection of the rights to organize convention. Freedom of association and protection of the rights to organize, and the protection of the right to organize. Protection of the right to organize convention नंबर 87, 1948 की ये कन्वेंशन है, ठीक है। India has not signed yet. And there is another convention, right to organize and collective bargaining convention. तुम लोगों के कमेंट्स मैं अभी नहीं देख रहा हूँ, मैं 2 मिनट बाद देखूंगा, एक ही बार सारे डाउट्स आंसर कर दूंगा अगर कोई डाउट्स हैं तो। इजी टू मेमोराइज 1948, 1949, लेकिन यहाँ पे कन्वेंशन नंबर 98 है। क्लियर? We ratify any convention, be it an ILO convention or climate change convention, anything. We ratify any convention when Indian laws are in sync with the commitments under international conventions. हम कोई भी कन्वेंशन तभी साइन करते हैं जब हमारी डोमेस्टिक लॉज सिंक्रोनाइज्ड होती हैं, ठीक है। We sign a convention when domestic laws are in sync with, they are in sync with international commitments under the convention. अब ये दोनों कन्वेंशंस इंडिया के साथ ना मेल नहीं खाती। क्यों? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, सिविल सर्वेंट्स को नहीं दिया जाता। दिस इज़ द मेजर वन बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक। हमारे आर्टिकल 33 और 34 फंडामेंटल राइट्स के, वो आर्टिकल जो तुम आज तक नहीं पढ़ते हो, ठीक है, आर्टिकल 33 और 34 और 35
आर्म्ड फोर्सेस पे, पुलिस पे, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पे एक रोक लगाते हैं कि इनके ऊपर, इनके पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और ये सब नहीं है. अब अगर हमें ये कन्वेंशन साइन करनी है तो हमें पहले सिविल सर्विसेज ग्रुप्स होते हैं, मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज एसोसिएशन, पंजाब सिविल सर्विसेज एसोसिएशन, ठीक है. तो उन सिविल सर्विसेज एसोसिएशंस पे कुछ रोक होती है, कुछ प्रतिबंध होते हैं, प्रोहिबिशंस होती हैं कि वो एसोसिएशन नहीं बना सकते. क्लियर? ठीक है. तो इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास राइट टू स्ट्राइक नहीं है. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास राइट टू ओपनली क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नहीं है. राइट टू फ्रीली एक्सेप्ट फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं है. राइट टू फ्रीली ज्वाइन फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हमारे यहाँ पे नहीं है. आर्टिकल 18 याद आ रहा होगा, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स एट्सेट्रा, राइट. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन इंडिया डू नॉट हैव राइट टू स्ट्राइक वर्क. लिख लो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन इंडिया डू नॉट हैव राइट टू स्ट्राइक फ्रॉम वर्क. ओके. राइट टू ओपनली क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज. राइट टू ओपनली क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज. नंबर 3, राइट टू फ्रीली एक्सेप्ट फिनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन. Right to freely accept financial contribution. Right to freely join foreign organizations. अगर आपको यूनाइटेड नेशंस भी ज्वाइन करना है ना, तो भी आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी. क्लियर? आपका कसूर ये होना चाहिए कि आप शशि थरूर हो, उसके बाद आप किसी और कसूर से बाइज्जत बरी हो जाओगे, चाहे बीवी का मर्डर ही क्यों ना किया हो. यूएन में भी लगोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे भी टिकट रहेगी हॉलीवुड की तुम्हारे पास, आईपीएल की भी टिकट रहेगी, सारा कुछ रहेगा. समझ रहे हो ना? नाउ क्लियर है एवरीथिंग? नाउ लेट अस हैव अ लुक एट योर कमेंट्स. व्हाई नॉट साइंड? इसीलिए नॉट साइंड. क्लियर? थर्ड वन अभी वाला, मूव योर पिक्स प्लीज. अच्छा, बड़ी दिक्कत है ना इतनी. ऐसे ऐसे पॉइंट उठाते हो जो कोई नहीं उठाता. लो, डन. थर्ड पॉइंट इक्वल रेम्यूनरेशन. अच्छा, यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट बोला था वो थर्ड पॉइंट है, लिखो. थर्ड पॉइंट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डू नॉट हैव द राइट टू फ्रीली एक्सेप्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, financial contribution. Government employees do not have the right to freely accept financial contribution. Fourth, to freely join foreign organization. Clear? चेंज करेंगे तो ठीक है, अभी दोबारा विजिबल हो जाएंगे. क्लियर? नाउ क्लियर फॉर एवरीवन? बीपीसीएल एम्प्लॉयज़ के देखो, एबेरेशंस हो सकती हैं, कॉरपोरेशंस कुछ कुछ दे देती हैं राइट्स वगैरह, वो एक अलग बात है. ठीक है, अब एक केस की निटिग्रिटी में मैं नहीं जाऊंगा, प्लीज़ अंडरस्टैंड. वो प्राइवेटाइज कर रही है कंपनी कोई किसी को, तो एलआईसी पे वो लोग जाते हैं. ठीक है, अब वही है कि मोदी जी वो गलती नहीं करना चाहते ना कि चींटी को मारने के लिए हाथी को बाहर निकालो. अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इफ़ देयर वुड बी सम एक्शन टेकन अगेंस्ट देम, देन दैट वुड लीड टू ओपनिंग अप ऑफ पेंडोराज बॉक्स. Then these labor unions would be behind these BPCL employees. Okay, All India Trade Union, etc., etc. So that is why government just ignores. Unlike the CGI, former CGI of India, who took the bike comment very seriously, right? So you have to choose what battles do you really have to fight. If you would start picking up every battle, then you would be a loser in life. Okay, like Modi ji. फोर्थ पॉइंट भी रिपीट करूं, तुम क्या कर रहे थे, सो रहे थे. फोर्थ पॉइंट है राइट टू एक्सेप्ट, राइट टू ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन. यही पूछ रहे हो प्रिंसी?
अब ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तुम देखोगे ना, उन्होंने ये चीज़ें नहीं कवर करी होंगी। यूपीएससी का इसकी नब्ज़ पकड़ना एक अलग कला है, बात को समझना। अभी ये लेबर पढ़ा रहा हूँ, इसकी 4 डायमेंशंस और हैं मेरे दिमाग में जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि देन आई वुड एंड अप ओपनिंग पेंडोरास बॉक्स फॉर माई ओन सेल्फ, बट आई विल मेक यू गाइज कवर देम एट रेलिवेंट प्लेस। ओके, सो दिस इज़ देयर। जैसे कि मैंने चलते चलते एक नाम लिया, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट। अभी तुम लेबर के ब्रॉडर इशू पे बात कर रहे हो, यूपीएससी चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट उठा के पूछ सकती है। ठीक है, तो है थोड़ा सा अच्छा काम है उनका। वाई नॉट साइन, ये नाम बता तो दिए क्यों नहीं साइन किए, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये हक नहीं है। Government employees do not have a right in India to proceed on a strike, to accept foreign contribution. If we would sign these convention number 87 and convention number 98, we would have to give the right to government employees. We would have to give these 4 rights to government employees. As I told you that we have to be compliant with the convention. Our domestic laws have to be compliant with the convention. Okay. और आज मैंने डीएनए में ट्रिप्स वाले आर्टिकल का एनालिसिस किया है, डब्ल्यूटीओ वाले का, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना। ऑल राइट, बाकी कंट्रीज़ में हमें क्या करना है, पाकिस्तान में है कि नहीं, हमें उससे क्या करना है। बाकी कंट्रीज़ में से कुछ ने साइन किया है, कुछ ने नहीं साइन किया है। यूएसए में दीज गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैव गॉट अ राइट टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ओके, सो इज़ द केस इन फ्रांस, यूके, अदर कंट्रीज़। बट वी आर अ कंट्री विच इज़ हाईली अफ्रेड ऑफ। मैं जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तो मैं बताता हूँ, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू प्रोसीड ऑन अ स्ट्राइक क्यों नहीं है। मैं ये सोचता था कि मैं अपनी स्टेट के उस टाइम के चीफ मिनिस्टर के घर पे मैं आईपीएस लूँगा, आईपीएस चूज़ करूँगा और चीफ मिनिस्टर के घर पे घुस जाऊँगा और रेड मारूंगा, और वहाँ पे स्मैक वैक तो मिल ही जाएगी, जो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, तो वहाँ पे चरस गांजा ये सब तो चलो छोड़ो, छोटी बातें, वहाँ पे स्मैक और ये सब बहुत अच्छे से काफिला बना रखा था उन्होंने। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि फिर मैं बाकी सिविल सर्वेंट्स को स्ट्राइक पे प्रोसीड कर दूंगा, और केजरीवाल की तरह पार्टी वार्टी बन जाएगी जिसमें सभी ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के। तो जब मेरे जैसा एक छोटा सा एस्पिरेंट ये सोच सकता है कि सरकार को रेड वेड करने के लिए वो चाहिए होती है गवर्नर की परमिशन, वो सब मैं जानता हूँ। ठीक है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन मत पढ़ाने लगना, लेकिन थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल था ये कि चीफ मिनिस्टर के घर पे रेड कंडक्ट करो। अगर कोई चीफ मिनिस्टर गलत है तो उसको भी अरेस्ट करने के लिए तुम्हें सेक्शन 197 के तहत सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन चाहिए होता है गवर्नर का, जो मैंने अशोक चौहान केस में पढ़ाया था। लेकिन दिक्कत पता है क्या है फिर? दिक्कत यह है कि तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। नौकरी नहीं रहेगी कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे साथ 15, 20, 25, 30 ब्यूरोक्रेट्स तुम्हारा साथ दे देते हैं, अगर तुमने अच्छी खासी उनके साथ सांठ गांठ है ईमानदारी वाली, तो फिर ये मान लो कि तुम उस स्टेट में तख्ता पलट कर सकते हो। ठीक है, तख्ता पलट का मतलब लीगल तख्ता पलट, गलत वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। तुम्हारी स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आया होगा जिसमें मॉर्निंग लिखा है। सिर्फ एक मिनट, राहिल, देन सो ऑल दिस इज़ देयर राइट। तो अभी के लिए मैं क्लास थोड़ा सा एंड कर रहा हूँ। एमपी की सीट ना लेनी, सीएम की लेनी है, राइट। आई कांट अंडरस्टैंड, इट इज़ लेबर कन्वेंशन बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पूरी क्लास देखना, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ करेंगे। अभी तो खैर सिविल सर्वेंट पुलिस वाले तो नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो बनेंगे, वरना ज़िंदगी का सौदा बहुत सस्ते में नहीं हो जाएगा, है ना। नाउ क्लियर।
All right. So this was all for today's class. I have a polity class too. सीएम एमपी क्यों होगा? प्रवीण, पॉलिटी की क्लास नहीं करी ना तुमने यहाँ पे? सीएम पहले एमएलए होगा कि एमपी होगा? कहाँ से पढ़ के आए हो पॉलिटी? मेरा नाम तो मत ही लेना। धन अकेडमी से पढ़ के आए हो लगता है ना? नाउ सो दिस वाज ऑल. ये तो बता दो कहाँ से पढ़ के आए हो, सॉरी बाद में कर देना. ऑल राइट. धन अकेडमी पे मैं पढ़ा रहा होता तो मैं भी यही सब पढ़ाने लगता, इसलिए मैंने छोड़ दिया. राइट. टीचर बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, लेकिन पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि एक टीचर को लेके आओ, उसका मनोबल गिराओ, उसको साइकोलॉजिकली टॉर्चर करो और फिर उसको छोड़ दो. समझ में आया? मेरे से नहीं पढ़ी हो सकती. मेरे से पढ़ी होगी तो वो बहुत अच्छे. तुम मैंने सीएम वाली पॉइंट में से वो स्मैक वाला पॉइंट तो नहीं चुन लिया? कहीं कहीं तुम्हें चढ़ गई हो, कुछ लगा लिया हो जॉइंट बातों बातों में. ये है, देखो किससे पंगा ले रहे हो, ये थोड़ा देख लो. तुम्हारे जैसे लोग 100-150 तो पढ़ाता हूँ मैं रोज, है ना? पता है, इसने सिलेक्टिवली वो वाला पॉइंट चुन लिया, जॉइंट वाला इसमें से. अच्छा, स्मैक, चरस गांजा, है ना? सो दिस इज देयर. थैंक यू गाइस, बाय बाय. बी सेफ. बट बी सेफ का मतलब ये नहीं है डोंट स्टडी. द मोर यू विल स्टडी द मोर सेफ यू विल बी, राइट? कीप डूइंग पुशअप्स और jogging etc. Keep working out and be safe, and then keep studying. Okay, done. Thank you guys.